you know, when I hear Kunal's story, which I didn't know very much about until we sat over here, I see so many students, you know, in front of us, and it's so inspiring, this never give up spirit, this fighter, you know, and no matter what, I will do it. You know, so it's amazing that you're sharing this with so many students over here, because they all have come here with a bag full of dreams, and the world's a hard place. It's not easy, but don't give up. Keep fighting for it, and you will make it, like both these stars sitting next to us. We all struggle. We all struggle in our own field, in our own way. And मेहनत एक चीज़ मैं आप सब लोगों को कहना चाहूँगा कि अगर तहे दिल से आपने मेहनत की और लगन से काम किया तो इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी. That's all I have to say. Aslam, tell me, how is your association with FDCR been? Oh, very good question. Well, FDCR, Fashion Design Council of Rajasthan, is by a very, very dear friend, and Nishant, okay? Nishant, I happen to know through Naveen. And when they told me about this, I said, it's a brilliant idea because, you know, we always come to Jaipur. I mean, I'm talking about myself. हम लोग आते हैं, उतरते हैं, कपड़े इस्त्रियाँ होती है, मॉडल्स की फिटिंग होती है और चले जाते हैं. हमने कभी भी इंटरैक्ट नहीं किया लोगों के साथ. And this was the first time that I was getting an opportunity to meet the people of Rajasthan. And I want everybody to know more about fashion, know what is behind fashion. I mean, just seeing a fashion show is not fashion. So to know a little bit about us also, to know a little bit about the people connected to the fashion industry, whether it's a makeup artist, it's a hairstylist, it's a backstage manager, even the backstage helper is equally important. Without that, the model wouldn't have got into the garment. So the technician, the person who handles music, the person who's handling lights, it's so important to have the right light fallen on the model and on the garment to make it look beautiful. Actually, Aslam has said exactly the right words because normally jab shows hota hai, we are always backstage. Every model is allotted one helper, and most of the helpers who help us are all graduating designing students. So for them also it's very different to see a different aspect because you see all the designers working together. You have backstage coordinators. You have makeup and hair who's logging their backside off, dressing all of us up. And between that you have the ironing guys who are ironing clothes of like day and night. They're just ironing clothes. Yes. And you know, someone has to come backstage and see what happens. It's so much of hard work. It's unreal because sometimes we only get tired being backstage because sometimes you're not allowed in the front. We're always kept backstage because all the hard work happens only backstage. True. And So I'm actually doing this for the first time. Normally we're always doing shows. It's the first time you actually see models and celebrities talking about what our industry is all about. And it's nice to know that music is collaborated with fashion because they kind of go hand in hand. So Kunal, what do you think about music and fashion going hand in hand? म्यूज़िक और फैशन तो देखिए अब आपका ओपिनियन क्या है? हाँ, अब क्या हो गया कि पहले आवाज़ सुनते थे लोग क्योंकि इतने सोर्सेज नहीं थे. अभी क्या हो गया कि जितने भी स्टार जो सिंगर्स हैं आप उनकी स्टाइलिंग देखना, वो लोग अपने आप को जिस तरह से प्रेजेंट करते हैं वो मतलब वो टाइम नहीं रहा अब कि आप कुछ भी पहन के परफॉर्म करोगे. या तो आप अरिजीत सिंह बन जाओ कि आपका फैशन ही मतलब आपकी सिंगिंग ही आपका फैशन है, मतलब कि वो जो भी गा देगा वो फैशन बन जाता है. या फिर आपको फिर उसके लिए आपका अगर आप परफॉर्मर हो आपको स्टेज प्रेजेंस आपका अच्छा होना चाहिए, आपने क्या पहन रखा है, क्या आपने स्टाइलिंग कर रखी है, वो हर चीज़ मैटर करती है आज के टाइम पे. तो आई थिंक दोनों पैरेलल ही चलते हैं. I totally agree with them. I think just go hand in hand and they're well collaborated with each other. Absolutely. On that note, does anyone have any questions they would like to ask Kunal or Aslam? Like, because being a fashion designer, one Yes. needs to earn also. yeah, yes. But not the, you can say, not the actual replica of what the fashion industry is about. Yeah. Okay. Fashion is just a word. Fashion is everywhere. Like in singing, he said,
कि अभी अगर मोहम्मद रफ़ी का फैशन है तो मोहम्मद रफ़ी का फैशन है, आतिफ का है तो दैट इज़ ऑल्सो अ फैशन. फैशन इज़ अ ट्रेंड. Okay. Fashion is not just limited to garment, I want to say. Okay. So in that Sui Dhaga, what I've seen both the movies, in Okay. fashion it's more about being a model and how the नहीं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, जैसे मधुर जी ने बताया था, मधुर भंडारकर साहब ने, वो कल भी आने वाले भी हैं, उन्होंने फैशन को एक अलग हिसाब से बताया था. इतनी रियलिटी जो उन्होंने बताई है, हमारी इंडस्ट्री में ऐसे कुछ कुछ चीज़ें जो है, जैसे कि मैंने आज तक के अपने करियर के 30 साल में मैंने कोई भी मॉडल को दारू पी के स्टेज पे जाते हुए नहीं देखा है. ओके, मैंने नहीं देखा. आई एम सॉरी, किसी को भी that नहीं is देखा. true. No, but I'm Yeah. not focused on that. I'm नहीं, more लेकिन focused on आप उसको उसके साथ मिला रहे हैं ना कि no, certainly not. I'm not trying to match Okay. those things. Okay. Actually, what you mentioned was more that we saw in Sui Dhaga, the iron thing that she mentioned, the people who are working Ji, of backstage, course, tailors. putting up the Ji. things, the garment Ji. onto the stage. That is what I just wanted to say that. Yeah, because I think you're all trying to say the same thing, that there's No. the show is the end product at the ramp, and there's a lot that goes behind that. So maybe Sui Dhaga is the prequel and fashion is what happens next. Yeah. True. Sui Dhaga with fashion. Thank you so much, sir. thank you. I wish Sui Dhaga was remade. Sui Dhaga is a movie. Yeah, अच्छा, I'm sorry, I don't even know. It's about, मैं about garments. It's, I'm sorry, I have not seen. मैं ज़्यादा पिक्चरें देखता ही नहीं. but that's what, sir, I was trying to tell you, that Aslam is from the 90s. Okay, so for him at that time, of course they used to work hard, but that time even the word fashion was a big deal. Sui Dhaga to baad mein aaya, yeah. Even the word fashion was a big deal, and that time even garment making was not as vast as it is right now. He comes from a different era. Yes, when I Right now things are a little bit more complicated than that time. अभी तो बिल्कुल Now अलग है. he's going to go बिल्कुल and watch अलग. Sui Dhaga. Now he's going to go and watch Sui Dhaga. मैं देखूंगा ज़रूर, जो आपने बोला है ज़रूर देखूंगा. मैं पिक्चर ही नहीं देखता हूँ, इसलिए मैंने कभी, मुझे मेरे इंडस्ट्री में बहुत सारे एक्टर्स हैं जो मेरे बहुत करीब हैं, मेरे बहुत अजीज़ हैं, और जो मेरे कपड़े भी पहनते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे, जैसे मुझे एक टाइम याद है, मुझे श्रीदेवी जी मिले थे और उन्होंने मुझसे कहा था कि आप मेरे लिए कपड़े बनाइए एंड करिए. तो मैंने उनसे कहा मैं फिल्म्स नहीं करता हूँ. तो उन्होंने कहा कि मेरी एक पिक्चर फ्लोर पे है, लाडला, और मेरी शादी हो रही है. सीन ऐसा है कि आई नीड समथिंग ब्राइडल, क्या आप मुझे दोगे, मेरे यू विल हेल्प मी. मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, वो कर सकता हूँ, लेकिन एक फ़िल्म मैं पूरी नहीं कर सकता हूँ. जैसे और एक इंसिडेंस मैं आपको बताऊँगा. हम लोग शूटिंग कर रहे थे एक बार, और आपने उनका नाम सुना होगा, बहुत बड़ी जर्नलिस्ट है भावना सुमाया करके. उन्होंने मुझे इस इंडस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा काम दिया जी मैगज़ीन के थ्रू. और वी वर शूटिंग, मैं रवीना टंडन जी के साथ शूटिंग कर रहा था, और उर्मिला मातोंडकर आई, और शी इज़ बीन अ फ्रेंड. तो उन्होंने कहा कि वाई डोंट यू शूट विथ मी. तो मैंने कहा ओके विल शूट विथ यू. मैंने उस टाइम पे बूस्टियर्स एंड यू नो उस टाइम पे बूस्टियर्स कोई पहनता नहीं था ज़्यादा. तो मैंने वो बनाया, और मैंने उनसे कहा कि आप ये पहनेंगी. तो उन्होंने पहले कहा नहीं मैं नहीं पहनूंगी ये. तो ऐसे लोग कि फिर आपको, फिर यू डोंट नीड मी. तो फिर कन्विंस हुई वो, और उन्होंने पहना, और उन्होंने वो पिक्चर्स लेके जाके राम गोपाल वर्मा जी को बताया, और वो उनको बहुत अच्छी फिल्म रंगीला मिली. तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मैं एक पिक्चर कर रही हूँ रंगीला, आप करोगे. तो मैंने कहा रंगीला असलम नहीं मैं नहीं करूँगा रंगीला, आप देख लीजिए. तो उन्होंने मुझसे मेरा फ़ोन पटक, शी बैंग माई फ़ोन एंड नेवर स्पोक टू मी फॉर ईयर्स टिल हम लोग ने 2000 में एक शो किया था दुबई में, जिधर वो मेरी और अमीशा पटेल के साथ शो स्टॉपर थी. एंड वी स्टार्टेड टॉकिंग अगेन. एंड देन जब मैंने खुद ने रंगीला देखी वो पिक्चर, तो मैंने कहा यार रंगीला मिस हो गई मेरे से. लेकिन वो पूरा कॉन्सेप्ट जो बूस्टियर का था, वो हमें भावना सोमाया जी ने परमिशन दी थी
कि आप जी मैगज़ीन के लिए ऐसे कर सकते हो, और हमारे जो कवर पेज था वो अलग था, लेकिन हमारे सेंटर स्प्रेड पे उर्मिला मातोंडकर थी और उनको हमने वो कपड़ा पहनाया था। और जितना भी आप देखोगे रंगीला फिल्म में कि उर्मिला जी ने ज़्यादा करके बूस्तियाज़ ही पहनी है, क्योंकि वो जो कॉन्सेप्ट हमने किया था, हमने मीन्स हम सब साथ में थे। ये साइमन रतन थे लंदन से जिन्होंने बाल किए थे, प्रवीण बैंकर मेकअप आर्टिस्ट थे जिन्होंने मेकअप किया था, जगदीश माली जी थे जिन्होंने फोटोग्राफी की थी, और कपड़े डिज़ाइंड बाय मेरे थे। सो वी केम अप विद अ ब्यूटिफुल इमेज एंड दैट्स हाउ that's how the movie went and it went on. लेकिन मैं रंगीला में नहीं था। Imagine Aslam Rangila. Yes. So Kunal, so tell me more about your recording studio. What's it called? It's called Songster. Songster Music. So has this always been your dream? या Songster मैंने इसलिए ओपन किया था कि मैं चाहता हूँ कि जो टाइम मुझे लगा चीज़ों को यहाँ से वहाँ जाने में, तो वो टाइम किसी और को ना लगे। अगर कोई टैलेंटेड है, अगर आता है म्यूज़िक के लिए या जुड़ना चाहता है, क्योंकि अभी चीज़ें इजी हैं, बहुत ज़्यादा इजी हैं, मतलब मेरे लिए इजी हैं। कि क्या होता था कि पहले ये सोचते थे कि ये मेरे पास एक अच्छा गाना पड़ा हुआ है, मुझे ये गाना किसको सुनाना है, तो मुझे सोचना पड़ता था। और मेरे पास सोर्सेज नहीं थे, कि सोर्स थे ही नहीं मेरे पास कि मैं सोचता था कि किसको सुनाऊँ, कौन सुनेगा। अभी वो फेज़ नहीं है। अगर किसी का बहुत अच्छा गाना है तो किसी भी फिल्म में, किसी भी लेवल में वो गाना इजीली मैं उसको लेके जा सकता हूँ कि ये गाना इस फिल्म में हम लगा सकते हैं। एटलीस्ट वो एक, क्योंकि अभी मेरे साथ में एक कंपोज़र को मैंने इंट्रोड्यूस किया है, रंगन चैटर्जी, तो उसको मैं कोलकाता से लेके आया था। जब पहली बार वो मेरे पास में आया था तो उसको मैंने बोला था कि, वो बोला भैया मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, क्योंकि पहले ऑर्कुट के टाइम में हमने एक बार कुछ काम किया था। जब वो आया मेरे पास मिला तो मैंने उसको एक छोटा सा काम दिया था, तो उसने वो ट्रैक बना के मुझे भेजा, उसने खुद ने गा के भेजा। तो मैंने उसको फिर बोला कि मैंने कहा यार तू एक काम कर, मुंबई आ जा। तो बोले भैया क्या करूँगा मैं? तो मैंने बोला कंपोज़र बनेगा, और क्या करेगा? तो बोले भैया मैं किसी को जानता नहीं हूँ। तो मैंने कहा एक काम कर, तू क्या सोचता है कि कितने साल में तू कंपोज़र बनेगा? तो बोले भैया मैं तो अभी सोच ही नहीं रहा हूँ। तो मैंने कहा सोच, फिर सोच के बता। फिर वो मुझे सोच के बता रहा है कि 7-8 साल मुझे लगेगा। तो मैंने कहा काम कर, मैं 1 साल में तेरा गाना फिल्म में होगा, तो एक बार मुंबई आ और काम करते हैं। फिर मैं उसको लेके गया। अगर किसी ने टी सीरीज़ का ऑफिस देखा है, वो लिंक रोड से 200 मीटर अंदर है टी सीरीज़ का ऑफिस। तो मैं उसको लेके गया वहाँ तक, और मैं बोला कि ये जो गली है ना, ये गली नहीं है, किस्मत है लोगों की। यहाँ से यहाँ आने में मेरे को, मैंने कहा 17 साल लगे हैं, ठीक है, लेकिन ये रास्ता मैंने तुम्हारे लिए एक दिन में मतलब कम कर दिया है। अभी तुम्हारा 5 मिनट बाद में टी सीरीज़ में तुम्हारा डबिंग शुरू हो जाएगा। तो एटलीस्ट उतना मैं कर सकता हूँ कि हाँ, अगर कोई अच्छी चीज़ है, कोई टैलेंटेड बंदा है, तो उसको वो धक्के नहीं खाने पड़ेंगे या उतना इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा। टैलेंटेड है तो मोस्ट वेलकम, आप आओ, सॉन्ग से जुड़ो, काम करो। क्योंकि अभी एटलीस्ट कोई ये नहीं बोल सकता, कोई ये नहीं कह सकता अभी कि यार कुछ है नहीं, कोई है नहीं, तो है, आप करोगे तो सब है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और जैसे मैंने अभी सुना आपको कि आप बता रहे थे टी सीरीज़ की वो गली नहीं किस्मत है, वो गली की किस्मत के सामने ही मेरा घर है। Anyone has any questions for Kunal? Please. Yes. Good question. जवाब दीजिए। वो जिसने सही दिल दुखाया था अनजाने में कि जिसने सही दिल दुखाया था अनजाने में और मुझे मशहूर कर दिया ज़माने में। Good. Which one? हंसी। Okay. देरे ना, हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, तुम मेरे आसमां मेरी ज़मीं बन गए। ओ हाँ। Thank you, sir. It's like, Any more questions? Yes. Oh, yes.
Yes, yes. Sir, do you regret not doing Rangila, especially since it made Manish Malhotra such a big designer? Then I also Okay. Ranjit, that's a very good question. Everybody told me that why you didn't do Rangila and Manish did it. And, I know Manish, James, myself, we used to hang around together. And for me, I think I am more of a fashion. Otherwise, by knowing, getting a chance to work with Sridevi was a big name, very big name. And Ravina Tandon, Manisha Korala, Shilpa Shetty, who else? Urmila, Amisha. I've worked with practically Shushmita, but I never wanted to do film. But yes, when I saw Devdas, Sanjay Leela Bansali's film, I wanted to not do the costume, but I wanted to live in that area where Chandramukhi stayed, that was so beautiful. So now if you get to do a movie like Devdas, or even, I have not seen, as I told you, I don't see much Hindi movies, but apparently her movie which was banned in Jaipur, Padmavati, that also has very good, and even, see, I must say, Sanjay Leela Bansali has the eye. He takes good, his clothing and everything, designing is fab. But honestly speaking, I have no regrets of not doing Rangila. I am being more Rangila on the ramp with my fashion industry. There was a girl there, yes. Who's your question to? Okay. So earlier we used to listen songs and lyrics like Ahista or Choti Si Umar Mein, but these days the lyrics have changed. Like not particularly saying, but to listen to DJ Wale Babu or the Chaman Raj song that came last year. Do you think it is doing justice to music? नो उसका रीज़न भी आप लोग ये बताऊँ क्यों? क्योंकि आप जाके देखो कि किसी भी गाने का रीमेक आता है ना, तो उस पर व्यूज़ आपको 100 मिलियन से ऊपर मिलेंगे, ठीक है? ओरिजिनल कंपोजिशन आएगी ना, तो वो अभी कंपनी को पैसा कमाना होता है। म्यूज़िक कंपनी सिर्फ ये देखते हैं कि क्या चलता है, क्या नहीं चल रहा है। यूथ ने ये एक ट्रेंड सेट कर दिया, क्योंकि जब 1, 2, 3 रीमेक्स बैक टू बैक हिट हो गए, तो अभी सारे रीमेक्स ही आ रहे हैं। आप सुनना बंद कर दो, कोई बनाएगा ही नहीं। सीरियसली बोल रहा हूँ। बाकी हाँ, ये जो आपने आहिस्ता ये सब बोला है कि उस तरह के गाने अभी कम से कम 8 या 9 फिल्म्स में तो ऐसे ही गाने मैं कर रहा हूँ फिलहाल, जो आने वाला है। तो जैसे फिर मुलाकात एक जो पूरा गज़ल है, वो आप अगर सुनोगे उसकी राइटिंग वो अभी का नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता था कि वो फिल्म में जाएगा गाना, और फाइनली इमरान हाशमी को गाना पसंद आया तो उन्होंने डाल दिया फिल्म में। तो आगे भी जिसको भी आएगा पसंद, वो उस तरह का गाना डालेगा, क्योंकि हर आदमी का म्यूज़िक सेंस अलग है, सुनने वाला भी अलग है किसी को, और मूड्स भी अलग अलग होते हैं। आप गाड़ी में हो, आपको ड्राइव वाले सॉन्ग्स पसंद है, आप पार्टी करो, आपको डांस सॉन्ग्स पसंद है। तो हर चीज़ का एक अलग वैल्यू है। किसी जगह पे आपको ये पसंद आएगा, किसी जगह वो आएगा। जब आपका मूड है किसी को याद करने का, तब आप डीजे वाले बाबू नहीं सुन सकते हो, ठीक है? जब आप किसी को आई लव यू बोलोगे, तो आप डीजे वाले बाबू नहीं सुन सकते हो। वो एक इंटेंस गाना होगा जो आप उसको सुनाओगे या उसको प्रेजेंट करोगे, ऐसा है। Super, Yeah, thank most you. welcome, yeah. I want to say something, since Ranjit has brought this question up to me. I had done a collection, and it came out. It was, that time there were boleros, and there was Shweta Menon and Rakshanda modeling for me. And I love that collection. And one fine day I come to know that somebody has written 4 pages on it. And that was Ranjit Rodrigues. Ranjit, thank you so much. I can never forget those 4 pages, what you wrote for me. I'm really thankful and grateful to you till today. Thank you very much. So before we close the day for the day today, just a few words of advice to everyone sitting over here from both of you all. Well, I would just say that FDCR, Fashion Design Council of Rajasthan, you're going to see much, much more than this. This is their first event, and it's their first baby.
I wish them all the best. We have tomorrow to go. We have again symposium tomorrow, and then followed by the grand finale is the fashion event. I just want people of Rajasthan to come up and please support, because it's a really very big step that Mr. Nishant has taken up, and please encourage him. That's it. Thank you. Yes, Kunal. फैशन के बारे में तो सर ने सब बता ही दिया, और इनका फील्ड है उसमें मैं इतना ज़्यादा बता नहीं सकता। बट हाँ, एक छोटी सी चीज़ मैं अगर आपको अच्छी लगे तो मैं बोल सकता हूँ कि हम मतलब अभी जो टाइम है उसमें हम लोग है ना खुद को भूल गए हैं कहीं पे, जहाँ तक मुझे लगता है ऐसा कि इंसान अपने आप से ना बोर बहुत जल्दी हो जाता है। तो हमने सबसे ज़्यादा अगर वक्त बिताया है ना हमारे साथ में, अगर किसी ने बिताया, तो मैंने बहुत लोगों से क्वेश्चन पूछा है, कोई कहता है मम्मी, कोई कहता है पापा, बट ऐसा नहीं है। पहली सांस से लेके आखिरी सांस तक एक चीज़ हमारे साथ में जुड़ी हुई, वो हमारा दिल होता है, कि वो ही हमको सबसे ज़्यादा समझता है। और हमने क्या कर दिया, किसी भी चीज़ की वजह से इसको सेकेंडरी कर दिया है। तो अगर आपने उसी को नाराज़ कर दिया तो आप कभी खुश ही नहीं रह सकते। मेरे को कभी किसी ने कहा था कि मैंने बोला, एक आंटी थी जो DDA की डायरेक्टर थी, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की, तो उनसे मेरी ऐसी बातचीत होती रहती थी। तो उन्होंने एक बार ऐसी बात चलती, मैंने कहा आंटी आप तो सक्सेसफुल हो, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, ऐसा वैसा। तो बोले बेटा कि सक्सेस क्या होती है पता है तुम्हें? मैंने कहा हाँ आंटी, आपकी ख्वाहिश की हर चीज़ अगर आपके पास में तो सक्सेसफुल हो आप। बोले नहीं, मेरे पास सब कुछ है बट आई एम नॉट हैप्पी। उन्होंने बोला कि इफ़ यू आर हैप्पी इट मीन्स यू आर सक्सेसफुल। दैट इज Well said. Thank you, Kunal. All right, on that note, we say thank you to Kunal and to Aslam and to this wonderful audience over here. Thanks. Thank you so much for joining us, all of y'all, and Aslam and Kunal. Thank you for coming. Thank you so much. Thank you, Hope you guys. enjoyed. And we shall be back again tomorrow at this very same place. Tomorrow is a bigger, better day. It only goes uphill from here. We start tomorrow at 10 a.m. We have some very famous names with us. We have Meenakshi Dixit, who's an actress. We have Mr. Madhur Bhandarkar, who's coming in. Wendell Rodrigues. It's going to be really a fun affair. So make sure you join us tomorrow. Have a good evening. See you then. See you tomorrow. And thank you for coming, everyone. Thank you.